Good morning, all of you. Welcome again. Yes, see on page number 95, Learning and Culture. We have completed some portions of Central Islamic lands in the form of economy. In the economy, we have covered agriculture, urbanization, and commerce. We came to know a lot about agriculture, urbanization, and what with the urbanization does, and what was the commerce, what kind of commerce was on that time, and which kind of currencies, which kind of principles were carried on by the community of the then time. Now, page number 95. 94 has been covered. On 95, learning and culture. The people of Islam, Islamic land, Arabia, as you already know, Muhammad Sahab, the Prophet who founded Islam, the religion of Islam, and after his after his parting of this world, the succession of Khalifa also came, and they also started the same as their Prophet taught them to be taken further regarding Quran, Hadith, and each and every word which was based on righteousness. So this type of education, religious education, was extended by Prophet, and after Prophet by Khalifa, and after Khalifa many other Sahaba, companions, Hazrat Mawiya, you have studied about them, and particularly the extension that was done by four Khalifas, particularly Hazrat Umar, Hazrat Usman, or Abu Bakr. And in the period of Ali, the extension of Arabia was not done. So, learning and culture is the scope of, is the boundaries of the Arabic culture. Arabic rule had been extended up to Spain, up to Afghanistan, a large area, a very vast and large area, were now under Islam. So it is natural. It was natural. The outlook of the pupil had now bigger than the previous one, uh, because the people because the people were now more educated, more learned, and they want to know something more new and innovative things. So, in the sense, the learning and culture. अब learning knowledge, ज्ञान, तो ये जो learning has started gaining momentum day by day, and the people wanted to know more and more new ones than they had known in their previous times. So, learning now I start as a religion and social experiences. धार्मिक और सामाजिक जो अनुभव थे, जो तजर्बे थे मुस्लिम्स के अब तक के इतने बड़े एरिया को कवर करने के बाद, डिपेंड पहले से गहरा गए, मतलब लोग काफी जागरूक हो चुके थे, काफी अवेयर हो चुके थे। क्यों हो गए थे? कांटेक्ट विद द अदर पीपल, क्योंकि काफी लोगों से पहले कुछ के संपर्क में थे, अब हजारों लाखों लोगों के कांटेक्ट में आ चुके थे, नई दुनिया देख चुके थे, उनकी अवेयरनेस काफी पहले से बढ़ चुकी थी। द कम्युनिटी, ये उम्मत जो थी was obliged to reflect on itself and confront issues pertaining to God, और खुदा से रिलेटेड क्वेश्चंस इनके सामने क्रिएट होने लगे थे, सामने आने के लिए इस तरह के इश्यूज, ऐसे क्वेश्चन सामने आने लगे जिनके आंसर्स की इनको आवश्यकता थी, ये जानना चाहते थे। इन द वर्ल्ड व्हाट शुड बी, अब किस तरह के क्वेश्चन इन्होंने फेस किए, कन्फ्रंट किए, व्हाट शुड बी द
आइडियल कंडक्ट ऑफ ए मुस्लिम इन पब्लिक एंड प्राइवेट। एक मुसलमान का घर से बाहर मतलब पब्लिकली और प्राइवेटली किस तरह उसका एटीट्यूड, किस तरह का उसका बिहेवियर होना चाहिए, ये भी लोग जानना चाहते थे। व्हाट शुड बी द आइडियल कंडक्ट, आदर्श व्यवहार कैसा होना चाहिए, पहला क्वेश्चन ये उनके माइंड में राइज हुआ। दूसरा क्वेश्चन था व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिएशन, खुदा ने हमें बनाया तो क्यों बनाया, ये सवाल था उसके अंदर। एंड हाउ डज वन नो, और कोई भी ये बात किस तरह जानेगा, किस तरह के मालूम उसको होगा कि व्हाट गॉड वांट, के खुदा अपनी उम्मत से क्या चाहता है, हमें उसने दुनिया में क्यों भेजा, व्हाट वांट फ्रॉम द क्रीचर, या खुदा अपने क्रीचर से क्या चाहता है, यानी ये वो जानना चाहते थे। हाउ कैन वन अंडरस्टैंड द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड, ये जो कायनात है, इसके जो रहस्य हैं किस तरह से कोई समझेगा। है? ये सूरज का निकलना, उसका डूबना, ये चांद, ये सब कुछ क्या है। इन जिस तरह के क्वेश्चंस अब इनके दिमागों में आने लगे थे और लोग इनसे पूछने लगे थे, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज्यादा वाइडन हो चुकी थी पहले से। अब आंसर टू सब किस तरह के क्वेश्चंस के आंसर केम फ्रॉम लर्नेड मुस्लिम, किस तरह के जो आंसर्स थे वो कौन दे सकता था, वो एक स्कॉलर, एक मुस्लिम स्कॉलर ही दे सकता था जो हाईली एजुकेटेड हो, who acquired, जिसने इल्म हासिल किया हो, एंड ऑर्गेनाइज नॉलेज ऑफ डिफरेंट काइंड, और अलग अलग तरह के नॉलेज को जिसने हासिल किया हो, जिसने पढ़ा हो, टू स्ट्रेंथन द सोशल आइडेंटिटी ऑफ द कम्युनिटी, कम्युनिटी की जो सामाजिक पहचान थी उसको मजबूत करने के लिए। ये सारी चीजें जरूरी हैं, तभी तो आपकी जो फंडामेंटल्स हैं, जो आपकी फाउंडेशन, जो बुनियादें हैं, उनको मजबूत करने के लिए इस तरह के लोगों की आवश्यकता थी। और इस तरह की चीजें अब क्रिएट होने लगी अरब कंट्री में, और जहां तक अरब कंट्रियों का, अरब कंट्रीज का रूल था, एज वेल एज द सेटिस्फाई देयर इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल समझदारी से भरी हुई जो उत्सुकता होती है, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, उनकी उनके आंसर जानने की जो ख्वाहिश होती है, वो अब चारों तरफ प्रीवेल हो चुकी थी, कॉमन हो चुकी थी, और ये लोग जानना चाहते थे। तो ये तो है सिनेरियो उस वक्त का लर्निंग और कल्चर को लेकर। अब देखिए अब इसके अंडर में क्या होता है, सेकंड पैरा पे आइए आप। सेकंड पैरा में है फॉर रिलीजियस स्कॉलर्स, अब धार्मिक जो मौलवी थे, है ना, जो स्कॉलर्स थे, जिनको ओलोमा कहा जाता है, आगे लिखा है ओलोमा, ओलोमा का मतलब रिलीजियस स्कॉलर्स, इनकी नॉलेज, नॉलेज इल्म डिराइव फ्रॉम द कुरान, इन्होंने किसको पढ़ा, कुरान को पढ़ा। कुरान एक गाइडलाइन है पूरे वर्ल्ड के ह्यूमन बीइंग के लिए, एक गाइडलाइन है किस तरह से आपको जिंदगी लीड करना है, कब क्या आपको सोचना है, कब क्या आपको एक्शन लेना है, डिसीजन लेना है, हर चीज उसमें लिखी है। तो ये जो रिलीजियस स्कॉलर होते थे, कुरान को समझने वाले, पढ़ने वाले, इन्होंने उसको पढ़ा, और द मॉडल बिहेवियर ऑफ द प्रॉफिट, और मोहम्मद साहब का जो मॉडल बिहेवियर था, मॉडल मतलब कहते हैं ना रोल मॉडल, तो ये जो स्कॉलर्स है इन्होंने दो बातें बताई कि जो लोग, अगर आपको खुदा के सामने अच्छा होना है, खुदा के सामने आपको राइचस होना है, उसके सामने अगर आपको, तो आपको उसकी निगाह में अगर आपको चलना है तो एक तो कुरान पे अमल करना होगा, कुरान में जो बातें लिखी है उन पर चलना होगा। दूसरा बताया कि मोहम्मद साहब जो नबी है ना, सारे सबके, उनके उनको आपको रोल मॉडल बना, मतलब उन्होंने जो किया, जो कहा, वो तुम्हें करना होगा, ठीक है ना। तो उनको फॉलो करना, आपके प्रिंसिपल्स को फॉलो करना, और कुरान पर फॉलो करना, ये दो चीजें आपको कहाँ तक किससे मिला सकती हैं, आपका रिलेशन किससे जोड़ देंगे, डायरेक्ट खुदा से जोड़ देंगे। इस तरह से जो खुदा है, जो गॉड है ना, जो अल्लाह है, वो आपसे राजी होगा इसको करने के लिए। तो नो द विल ऑफ गॉड, विल ऑफ गॉड खुदा की मर्जी, है ना, जो वो चाहता है वो यही चाहता है कि आप कुरान पे अमल करें, वो यही चाहता है कि आप उसके नबी की बताई बातों को फॉलो करें। तो ये चीजें किसने प्रोपेगेट की, रिलीजियस स्कॉलर्स ने या उलमाओं ने की, ये बताया। एंड प्रोवाइड गाइडेंस, और ये दोनों चीजें क्या प्रोवाइड कर रही हैं, सारी ह्यूमैनिटी को, सारी मानवता को, ये कम्युनिटी को गाइडेंस, उसको रोशनी दिखा रही है, राह दिखा रही है। इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में किस तरह जीना है। द उलमा इन मेडाइवल टाइम्स, मेडाइवल टाइम्स के जो आलिम थे,
उलमा थे, स्कॉलर्स थे। स्कॉलर्स थे, डिवोटेड देमसेल्फ इन राइटिंग तफसीर। इन मिडाइवल टाइम के जो स्कॉलर थे उन्होंने अपने आप की पूरा जिंदगी समर्पित कर दी क्या लिखने में? तफसीर लिखने में। तफसीर का मतलब कमेंट्री, कमेंट्री ऑन कुरान, कमेंट्री ऑन हदीस, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब चीजें लिखकर हमारे सामने उन्होंने रखी। कुरान अपने आप में बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना खुली, एक तरह से वो हर चीज उसमें क्लियर कर रही है, उसमें इशारे दिए हुए हैं कई जगह पर, है ना? उनको इंस्पायर किया गया है, उनको मैनिफेस्ट किया गया है एक्सपर्ट के द्वारा, इन उलमाओं के द्वारा। ये डॉक्यूमेंटिंग मोहम्मद साहब ऑथेंटिक हदीस, मोहम्मद साहब की जो हदीसें हैं उनको फाइल अप करने के लिए, उन्हें कंपाइल करने के लिए इन स्कॉलर्स ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, अपने लाइफ को डिवोट किया हदीसों को लिखने में। सम वेंट ऑन, कुछ लोग को वेंट ऑन टू प्रिपेयर ए बॉडी ऑफ लॉज या शरिया। हम सुना शरीयत, शरीयत का मतलब धार्मिक उसूलों के तहत अपनी जिंदगी को फॉलो करना, जिंदगी गुजरना। तो ये बॉडी ऑफ लॉ, कानून, कानून बनाया गया कि किस तरह आपको लाइफ को लीड करना है, उसको अरबी में कहते हैं शरिया। तो शरिया, कुछ जो लोग थे, सम वेंट ऑन टू प्रिपेयर, कुछ लोगों ने शरिया बनाई, कानून बनाया। शरिया का मीनिंग होता है द स्ट्रेट पाथ, सीधा रास्ता। शरिया स्ट्रेट पाथ टू गवर्न द रिलेशनशिप ऑफ मुस्लिम्स विद गॉड, ताकि शरिया लागू करके, है नहीं तो हर कम्युनिटी को, हर एक को, है ना, ये शरिया ये दिखा सके ये सच्चा रास्ता, ये राइचस पाथ है, इस पे चल के आप खुदा को राजी कर सकते हो, उसके विल को आप अचीव कर सकते हैं, शरिया। तो रेस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी मुस्लिम्स गॉड थ्रू रिचुअल्स, रिचुअल्स इबादत, रोजा, नमाज, ज़कात, खैरात, ये जो चीजें होती हैं, सच बोलना, चोरी ना करना, ये सब शरिया में काउंट होती हैं। तो शरिया लागू करके, बॉडी ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करके, ठीक है, लोगों को सही रास्ता दिखाया, द स्टेट पाथ टू गवर्न द रिलेशनशिप मुस्लिम्स विद द गॉड थ्रू रिचुअल्स एंड विद द रेस्ट ऑफ द ह्यूमन थ्रू सोशल अफेयर्स। सोशल अफेयर, मामलात, हमारे मामलात, मेरे आपसे मामलात कैसे हो, आपके पड़ोसी से मामलात कैसे हो, भाई से कैसे हो, कोई एक अननोन आदमी से कैसे हो, ये मामलात हो गए। ये सारी चीजें शरिया के थ्रू है। ये सब चीजें बताकर ओपन करके थ्रू सोशल अफेयर मामला, ये कह रहे इन फ्रेमिंग इस्लामिक लॉ, इस्लामिक लॉ, इस्लामी कानून को बनाने के लिए कौन कौन लोग आगे आए? जूरिस्ट, जूरिस्ट लोगों का एक इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। जूरिस्ट ऑल्सो मेड यूज ऑफ रीजनिंग। अब देखिए रीजनिंग का इस्तेमाल किया गया, अपनी अक्ल का, अपनी इंटेलेक्चुअल का इस्तेमाल किया गया जूरिस्ट के द्वारा। जूरिस्ट जो एक्सपर्ट्स होते हैं किसी पर्टिकुलर नॉलेज या काइंड ऑफ उसके जो नॉलेज के जो होते हैं, एक्सपर्ट हुआ करते हैं, वो जूरिस्ट हो गए। तो इन्होंने रीजनिंग, रीजनिंग कयास, जिसे हम कहते हैं गेस करना या एस्टिमेट करना, यहाँ लिखा है रीजनिंग, रीजनिंग सही है, अपनी अकल को उसमें लगाकर एक्सपर्ट को। तो यूज ऑफ रीजनिंग, इन लोगों ने, जूरिस्ट ने रीजनिंग का यूज किया। सिंस नॉट एवरीथिंग, क्यों किया? सिंस नॉट एवरीथिंग, एवरीथिंग वाज एपरेंट इन द कुरान और हदीस, क्योंकि कुरान में हर चीज एकदम ओपनली लिखी हुई नहीं थी, ठीक है। तो उसको उन्होंने, जैसे उन्होंने कोई बात कही कि आप ऐसा आप करेंगे तो ऐसा होगा, तो उसको समझाने के लिए कई बातें बिल्कुल इन्हें नटशेल, जिसे हम कहते हैं गागर में सागर होती है, कुरान में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जैसे गागर में सागर, ये समझे आप, वो एकदम समझ में नहीं आती। तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए जो एक्सपर्ट होते हैं, जूरिस्ट होते हैं, ये हदीसें लिखते हैं, उसका खुलासा लिखते हैं, ताकि आम पब्लिक के दिमाग में वो बातें, उन बातों को हम समझा सकें, ठीक है ना। जी आपसे कहना चाहते हैं, apparent in the Quran or Hadith, and life had become increasingly complex with urbanization। और लाइफ पहले से, जब शरिया लागू हुई, शरिया बनी, तो पहले से लाइफ जो थी अर्बन्स में पहले से ज्यादा जटिल हो गई थी। लोग जी वो इसमें ऑर्गेनाइजेशन, differences in the interpretation of the sources and methods of jurisprudence led to the formation of 4 schools of law। इस तरह की जब डिस्प्यूट्स क्रिएट हुए, लाइफ पहले से क्रिटिकल हो गई,
पहले से जटिल हो गई, क्योंकि तरह तरह की प्रॉब्लम्स, इश्यूज क्रिएट होने लगे। मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आया कि चोरी करने पर हाथ क्यों काटे जाते हैं, लेकिन मेरे साथी ने कहा, उसने कुछ और कहा, किसी ने कुछ और कहा, इस तरह की डिस्प्यूट्स क्रिएट हुए। लाइफ पहले से कॉम्प्लेक्स हो गई। और अब क्या हुआ, इस चीज ने एक नई चीज को जन्म दिया, और वो था 4 स्कूल्स ऑफ लॉ। वो 4 स्कूल्स ऑफ लॉ, जिसे मजहब, यहाँ लिखा है मजहब, इन द 8, और ये कब पैदा हुए, 8 और 9th सेंचुरी में 4 स्कूल्स ऑफ लॉ क्रिएट हो गए। वो क्या थे? दीज वर द मलकी। नंबर 1 मलकी, दूसरा हनफी, तीसरा शाफई, और चौथा हम्बली। ये 4 ग्रेट स्कॉलर्स हैं अपने दौर के, जिन्होंने अपनी अपनी मेहनत से पूरी जिंदगी इन्होंने डिवोट करके इन गुत्थियों को, इन कॉम्प्लेक्सेस को डिस्क्वायर किया, उसको एक्सपोज किया, और बहुत सिंप्लीफाइड करके हमारे सामने रखा। हालांकि इन सब के बातों में कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शंस है, और इनमें सबसे ज्यादा जो कंजर्वेटिव है, जो कंजर्वेटिव आइडियाज हैं, वो किस स्कूल के हैं? वो है आपके हम्बली के। हम्बली को माना गया है कंजर्वेटिव। तो ये 8 और 9th सेंचुरी में ये 4 स्कूल्स सामने आए। ये 4 स्कूल्स के नाम आपके सामने आ चुके हैं, ईच नेम्ड आफ्टर ए लीडिंग जूरिस्ट। इनमें जो नाम है, एक जूरिस्ट, जैसे एक पहले जूरिस्ट का नाम था मलकी, यानी मलकी है ये, दूसरे हम्बली है, शाफई है, और ये इस टाइप से। ये जो है, ये सब नाम है इन स्कॉलर्स के, इन जूरिस्ट के। तो उन्हीं के नाम पे ये 4 स्कूल्स का नाम रख दिया गया। द शरिया प्रोवाइडेड गाइडेंस ऑन ऑल पॉसिबल लीगल इश्यूज। जितने भी लीगल इश्यू, जायज जो इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, उन पर शरिया ने अपनी राय रखी है, अपनी राय जाहिर की है। विद इन सुन्नी सोसाइटी, सुन्नी सोसाइटी मोहम्मद साहब के मानने वाले शिया और सुन्नी 2 फैक्शंस हुए हैं, आपने पढ़ा है इसको। सोसाइटी, दो इट वॉज मोर प्रिसाइज ऑन क्वेश्चंस ऑफ पर्सनल स्टेटस मैरिज। इस शरिया ने अधिकांश अपना फोकस जिसको किया है, जिन इश्यूज को किया है, वो है मैरिज, डाइवोर्स, तलाक है, शादी है, और इनहेरिटेंस, और है विरासत, और कुछ और भी इश्यूज हैं जिनको ये अपने अंदर एनकम्पास करता है शरिया। कुछ ऐसे मुद्दे रहे हैं जो शरिया से बाहर रहे हैं, या लोगों ने, जो कंट्री साइड के लोग थे, जो आउटस्कर्ट के लोग थे, उन्होंने शरिया को वहां पर बाईपास किया है, और उन्होंने कस्टमरी जो लॉज होते हैं, जो कस्टम के अकॉर्डिंग होते हैं, है ना, उनको ही उन्होंने फॉलो किया है। जैसे अपनी जमीन में से जो लैंड होती है, उसमें से लड़की को हिस्सा नहीं देना, जो लड़की का हमारी जमीन में से, प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं होगा, यानी शरिया तो कहती है, लेकिन कुछ लोगों ने उस वक्त इस चीज को फॉलो नहीं किया। उन्होंने अपने कस्टमरी लॉस को ही उसमें इम्प्लीमेंट किया। ये आपसे कहता है पर्सनल स्टेटस, पर्सनल स्वयं का जो सम्मान है, जैसे मैरिज है, और भी आपको तीसरा देन ऑन कॉमर्स मैटर्स, कॉमर्शियल मैटर्स, कॉमर्शियल जो व्यावसायिक जो मामला थे, या पेनल से रिलेटेड जो मामला थे, या संविधान को लेकर जो इश्यूज हैं, इसमें शरिया का दखल कम रहा है इस टाइम में। अब पेज नंबर 97 पे आते हैं। बिफोर इट टू इट्स फाइनल शो, है ना, शरिया अपनी फाइनल शेप लेने से पहले, है नहीं, क्या द शरिया वाज एडजस्टेड, शरिया को एडजस्ट किया गया टू टेक इनटू अकाउंट द कस्टमरी लॉ, जो कस्टमरी लॉ, कस्टमरी रीति रिवाज के अकॉर्डिंग जो कानून हमारे समाज में बनाए जाते हैं, उसको भी शरिया से जोड़ा जाए। ऑफ द वेरियस रीजन, अलग अलग, एज वेल एज द लॉज ऑफ द स्टेट ऑन पॉलिटिकल, जिस तरह से स्टेट के पॉलिटिकल और सोशल कानून होते हैं, किस तरह से, उसी तरह से जो शरिया थी, इसको लागू किया जाना था, और इसको आखिरी रूप दिया जाना था। सोशल ऑर्डर, कस्टमरी लॉ, ये कस्टमरी जो कानून थे, हाउएवर, फिर भी रिटेन देयर स्ट्रेंथ टू लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री साइड। उस टाइम में जो कंट्री साइड एरिया थे, जो बाहर के, जिसे बद्दू लोग कहते हैं, बेड्यूस कहते हैं, जहां लोग इतना अभी नहीं समझते थे, उन्होंने अपने शरिया को फिलहाल अभी एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने, और उन्होंने अपने कस्टमरी लॉस को ही चलाया, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने फैसला किया बहुत सी बातों में, बहुत से कानूनों के अंदर। जैसे मैंने भी आपको बताया था,
शरिया इन द मैटर्स ऑफ सच इज द इनहेरिटेंस ऑफ द लैंड बाय डॉटर्स। ये जमीन में से, प्रॉपर्टी में से लड़की को हिस्सा नहीं मिलेगा, ये इनहेरिटेंस लॉ के अकॉर्डिंग है, शरिया के अकॉर्डिंग नहीं है। इन्होंने को यहाँ एक मिसाल दी, आपको ये बताया गया है। इसके बाद जो आता है द शरिया इन मेट सॉरी इन मोस्ट रीजन्स द रूलर और हिज ऑफिशियल, शासक या उसके अधिकारी लोग डेल्ड विद रूटीनली विद मैटर्स, जो भी शासक थे उस वक्त के, वो मामला को, पॉलिटिकल अफेयर्स को, दूसरे अफेयर्स को जब वो डील करते थे, जो डीलिंग होती थी वो स्टेट सिक्योरिटी के, मतलब स्टेट अपने कंट्री की सुरक्षा को लेकर ज्यादा मैटर्स आती थी, मैटर्स ऑफ स्टेट सिक्योरिटी इनको ज्यादा डील किया, एंड सेंट ओनली, और मात्र सिलेक्टेड मुकदमों को ही, केसेस को ही काजी के पास या जज के पास भेजा जाता था। ये आपसे कहता है ना, काजी वो काजी जिसको स्टेट उस वक्त की गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी हर एक सिटी में या लोकेलिटी में। ऑफन, अक्सर वो काजी ऑफन एक्टेड एज एन आर्बिट्रेटर, ये किस तरह काम करता था, एक मध्यस्थ के रूप में, आर्बिट्रेटर है, नॉट एज ए स्ट्रिक्ट एनफोर्सर ऑफ द शरिया, शरिया का मतलब शरिया को 100% शरिया के कानून को लागू करवाए ये काजी है, नहीं ऐसा नहीं होता था, बल्कि ये एक बतौर आर्बिट्रेटर के रूप में काम करता था। ये डिस्प्यूट, जो भी डिस्प्यूट होते थे उनको सुलझाना, जैसे जज हुआ करते हैं आज के उस टाइम भी, रादर देन एन स्ट्रिक्ट एनफोर्सर ऑफ द शरिया, शरिया को 100% लागू ये नहीं करवा सकते थे उस वक्त में, ठीक है, और एक मध्यस्थ की भूमिका अदा करते थे और डिस्प्यूट्स को सुलझा लिया करते थे। तो यहाँ पर आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और इसको आप देख लें, ध्यान से पढ़ लेना। इसमें स्कूल्स के बारे में आया है, शरिया कुछ टर्म्स आए स्पेशल, उनको आप याद करें, और उनके अलावा ये 3 क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड, व्हाट वर द क्रूसेड, ये क्रूसेड कौन थे, व्हाट वर द इम्पैक्ट ऑफ क्रूसेड्स ऑन क्रिश्चियन मुस्लिम रिलेशंस, इन पर क्या इसके इम्पैक्ट रहे, प्रभाव रहे। थर्ड है हाउ वर सिटीज डिजाइन अंडर इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक स्टेट जब बन गए तो सिटीज को किस तरह डिजाइन किया गया, इसके आंसर गोल्डन में लिखे हैं, आप उसमें से देख सकते हैं, ये शॉर्ट आंसर है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।